Welcome to Mathomania. Today we are going to discuss second part of exercise 1.3 starting with question number 5. So what is in our question number 5? We have to represent 1 upon 17. हमें इसकी decimal expansion find करनी. We have to find its decimal expansion. So just we have to divide 1 by 17. As you can see 1 is less than 17. तो सबसे पहले हमें इसका डेसिमल पुट करना पड़ेगा. सबसे पहले हमने यहाँ पे 0 पुट किया, देन वी हैव पुट अ डेसिमल ओवर हियर. मैं यहाँ से लिख देती हूँ 0 एंड देन डेसिमल. इसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया 10. बट 10 इज ऑल्सो लेस देन 17. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और 0 पुट करेंगे ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए 700. तो अब हमें चेक करना है कि कहां पर हम इसको इससे छोटा नंबर लिखेंगे. अब हमने 17 का टेबल साइड में लिखा हुआ है. हम देख रहे हैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 85. So we will write here 5 and here we will be having the 85. Now we will just subtract it. What we will get? We will get 15, but 15 is less than 17. हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया हुआ है, so we can put 1 0 over here. अब हमें चेक करना है हमारे पास 17 के टेबल में 150 से छोटा और कहां पर आता है. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, हमारे पास अगर 9 पे जाए तो 153 which is greater than 150. So we will be considering 8. So 17 times 8 is we are having as 136. So when we will subtract it, but we will get 14 as decimal is there. So we can put 1 0 over here. Now it is 140. 140 दोबारा किस पे जाएगा 8 पे. Here we are having 8 and it is 136. Now you are left with 4. Decimal was there, so you can put a 0 over here. Now 40. 17 times 2 is 34. ये इससे छोटा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2. We will get 34 and when you will subtract it, but you will get 6. Now decimal was there. अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, it will become 60. So it is 60 over here. अब इसके आगे हमने क्या करना है, 17 के टेबल पे चेक करना है 60 से छोटा कब आता है 3 पे, which is 51. Now when you will subtract it, you will get 9. तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास 90 आ गया है. Now what you will get, 90 के टेबल पे छोटा कहाँ पर है हमारे पास 5 पे किया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 85. मैं इसको छोटा करूंगी क्योंकि 16-17 प्लेसेस तक चलती है, इसलिए ताकि सारे स्टेप्स इसी में आ जाए. That's why. Now 90 minus 85 is 5, so we will get 50 over here. Now what we will write? We will write 2 over here, but you will get 34. And when you will subtract 34 from 50, what you will get? You will get 16 only, and as 16 is less than 17, so as decimal was there, so you will put a 0 over here. It will become 160. Now it will go up to 9. 17 times 9 is 153. Now when you will subtract it down, you will get only 7. As decimal was there, you can put a 0 over here. Now 5 or 4, it will go to 4. Now 17 times 4 is 68. When you will subtract it down, you will get 2 and it will become 20. Now it will go on the table of 17 multiplied by 1 is 17. So when you will subtract it down, what you will get? You will get 3. It will become 30. Now it will again go to 7. It will become, now when you will subtract it, you will get 13. It will become 130. Now it will go to the table of 7, but it will become 119. The rest I will be doing here. 130 minus 119, what you will be getting? Here you will get 1, here you will also get 1. Now you are left with 110. It will go to the table of 6. What will you get? 102. Now when you will subtract it, but you will come, it will become 8, and because decimal was there, so we can put a 0 over here. So but it will become 80. Now we will check on which table it will be going. It will be going on the table of 4 again. So we will be writing here 68. So when we will be subtracting 68 from 80, what we will be getting? We will be getting
12. Now we'll put a 0 over here. It will go to the table of 7. Now 119, you will be left with 1. Now you have started from 1. आपने 1 से ही स्टार्ट किया था. अगेन यू हैव रीच्ड 1. इसका मतलब इसके बाद जो सारे स्टेप्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. मतलब इसके बाद जो सारे स्टेप्स है वो आपके पास रिपीट करेंगे डेसिमल वाले. तो 1/17 की आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 0.0588235294117 and there will be bar on the part which is at the right hand side of the decimal. So this will be the answer of decimal expansion of 1/17. Which kind of decimal expansion is this? It is non-terminating and recurring. Why it is non-terminating and recurring? Because the answer is not getting stopped. It will repeat again and again. That's why it is recurring. और हमने पढ़ा है जो non-terminating और recurring होते हैं they are rational numbers. Now in question number 6 आपको पूछा गया है कि आपने इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं, तो अगर आप बिना सॉल्व किए बताना चाहो कि whether the given decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप किस बेसिस पे बता सकते हो. तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. जैसे अगर हम 1/2 लेते हैं तो 1/2 का आंसर आपके पास क्या आता है, 0.5. अब इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम क्यों बोलते हैं, वो क्या है, 2 raised to the power 1. ठीक है. अब अगर हम इसी में कंसीडर करें, हमारे पास क्या आ जाए, 5/8. लेट अस कंसीडर दैट इट इज 5/8. जब आप 5/8 को सॉल्व करोगे देन what will you get? Here you are having 5 and here is your 8. First it will become 0 point because 5 is less than 8, so it will become 50. It will go to the table of 6 which is 48. Now when you will subtract it you will get 20. अब 8 के टेबल पे 20 में छोटा कब आता है, 2 पे. It is 16. Now 20 minus 16 is 4. Decimal was there, so you can put a 0 over here. Now it will become 40. 8 times 5 is 40. So what you will get, 0.625. तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि आंसर एक पॉइंट के बाद आके स्टॉप हो रहा है. अब यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास किसकी फॉर्म का है, 2 raised to the power 3, क्योंकि 2 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 8 होता है. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3/5, 3/5 आपके पास इसके डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या होती है, यू नो 5 times 6 is 30. तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0.6. तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जैसे कि हम अगर 3 को डिवाइड करते हैं 5 से, फर्स्ट इट विल बिकम 0 point, then it will become 30 and it will go to the table of 30. Now अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी, 5 raised to the power 1. तो हमने क्या देखा है, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 या 5 होता है तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन रही है, टर्मिनेटिंग. बट अगर मैं कंसीडर करूं 7/20, 7/20 इसको इजीली सॉल्व करने के लिए मैं स्प्लिट भी कर सकती हूँ, बट इट विल बिकम, जैसे आपके पास यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगी, 7 into 2/10. पहले 7/2 का वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, बट इट विल बिकम 6, 1.5, 10. इट विल बिकम 3.5/10. जब नीचे एक जितने जीरोस होते हैं तो डेसिमल उतना हमारे पास लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 0.35. तो इसका आंसर आपके पास क्या आया, 0.35. तो आपने देखा इसमें भी आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन रही है, टर्मिनेटिंग, और इसमें आपके पास डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, 20 की फैक्टराइजेशन क्या बनती है, 5 multiplied by 4, but 4 is not a prime number, so you will write it as 5 into 2 into 2. It can also be written as 5 raised to the power 1 into 2 raised to the power 2. तो आपने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, 2m into 5 की पावर n. मतलब अब यहां पर देखो m की वैल्यू इसको इसके साथ कंसीडर करो, इसको इसके साथ,
कंपेयर करो, यहाँ पर m की वैल्यू क्या बन रही है 1, 5 कुछ नहीं है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है इट इज इक्वल टू 1 ओनली, मतलब यहाँ पर पावर क्या है, जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2m into 5 raised to the power n। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म की बनेगी, इट मींस द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ऑफ व्हिच काइंड, इट विल बी टर्मिनेटिंग। सो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप किसी भी जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसकी डिनोमिनेटर में चेक कर लीजिए, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में बनती है, इट मींस दैट डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। सो rational numbers in which denominator को हम किससे डिनोट करते हैं, q से, have prime factorization, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म की होनी चाहिए हमारे पास, 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then the डेसिमल एक्सपेंशन विल बी, तो उसमें हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की मिलेगी, टर्मिनेटिंग टाइप की, मतलब जो आंसर एक पॉइंट पे आके हमारा स्टॉप हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में बनेगा 2m into 5 raised to the power n, तब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 की कुछ वैल्यू नहीं, मतलब n की वैल्यू क्या है 0 है, बट डेसिमल जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है वो तो इसी फॉर्म के हैं, तो ये हमारे पास इसीलिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट टर्न्स आउट टू बी टर्मिनेटिंग। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताना है, 3 ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस बतानी है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो इसमें यू आर हैविंग प्लेथोरा प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि आपको कुछ भी आप इसमें बस कुछ ऐसा पैटर्न लिखिए जो कि रिपीट नहीं करता है। सो फर्स्ट में जैसे कि कुछ लिख रही हूँ 0.73, 025, 679, 28 अप टू सो ऑन, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि आंसर स्टॉप नहीं हो रहा है, नॉन रेकरिंग क्योंकि कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यू हैव, अब आपको एक और एग्जांपल, आपको 3 एग्जांपल्स लिखनी है। फर्स्ट आप, अब सेकंड इसमें आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो 0.80, 8800, 88800। अब आप सोचोगे कि रेकरिंग है, बट नहीं, ये रेकरिंग नहीं है क्योंकि इसमें एक पैटर्न रिपीट थोड़ी कर रहा है। अगर एक ही पैटर्न रिपीट करते हैं, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर भी 80, यहाँ पर भी 80 होना चाहिए, बट इट इज 80, 880, 888, so the pattern is getting changed, so it is an example of non-terminating and non-recurring decimal expansion। और आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, थर्ड एग्जांपल वी आर हैविंग 0.12, 1122, 111, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इन दिस यू हैव नो बाउंडेशन कि आपको यही वाले लिखने हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड नॉन रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास, ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, मतलब कि उसमें ना तो आंसर स्टॉप करना चाहिए और कोई भी पैटर्न आपके पास रिपीट नहीं करना चाहिए। नाउ फर्स्ट यू आर हैविंग 5/7, फॉर दिस यू नीड टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 फर्स्ट। सो we are having this now as 5 is less than 7, so we will be putting 0 point, so it will become 50। 7 की टेबल पे 50 से छोटा कब जाएगा, 7 पे, it will become 49। now we will get only 1, so decimal was there, so we can put 1 0 over here, it will go on the table of 1, we will get 3, it will become 30, now it will go on the table of 4, we will get 28 over here, and when we will subtract it, what we will get 2 only, as decimal was there, so we can put a 0 over here. Now it has become 20, now it will go to the table of 2, it will become 14, and when you will subtract it you will get 60, and now it will go to the table of 8, where we will get that it is 56. Now when you will subtract it, what you will get 40, 4 was there and as decimal was there, so you can put a 0 over here। आपने जब 60 में से 56 को माइनस किया तो आपके पास 4 बचा था, बट डेसिमल है इसलिए आपने यहाँ पर क्या लगा दिया 0। अब किसके टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे,
35। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बचा 5। कहां से स्टार्ट किया था 5 से, 5 से स्टार्ट किया था और एंड भी यहीं पे किया। इसका मतलब इसके बाद जो सारा पैटर्न होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या बन जाएगी 0.714285 and there is a bar on this part. Now we need to find the decimal expansion of 9 upon 11 as well. So let us find its decimal expansion as well. So here we are having 9 and here we are having 11. As 9 is less than 11, so we'll be putting 0 and decimal along with it. So what it will become? It will become 90. Now it will go to the table of 8. अब 9 11 से छोटा था इसलिए पहले 0 लगा के डेसिमल लगाया ताकि क्या बन जाए 90। अब हमारे पास क्या, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, पहले 0 से किया तो क्या बना 9, अब डेसिमल था तो 0 आ गया। अब 11 के टेबल कहां पे जाएगा 88, but you will get when you will subtract it down you will get 20। अब 20 के टेबल पे गया 11 पे जाएगा, 11 times 1 is 11, so when you will subtract it down what you will get 9। 9 से स्टार्ट किया था और 9 ही आ गया, मतलब इसके बाद वाला पैटर्न क्या करेगा रिपीट करेगा। तो आप ध्यान से देखो यहां पर आपके पास क्या बन रहा है 71 और यहां पर क्या बन रहा है आपके पास 81। तो आपने इसके बीच वाले नंबर्स लिखने हैं, बट कंडीशन शुड बी देयर दैट द एक्सपेंशन शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो आपके पास हमारे पास क्या है 0. जैसे 7 बनना तो मैं 2 के फॉर्म में लिख देती, 2 3 4 6 7 9 8 5 अप टू सो ऑन। इसमें आप देख रहे हो आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड इट इज नॉन रेकरिंग, सो इट इज फर्स्ट इरेशनल नंबर। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग से आपको कौन से किस तरीके के नंबर्स मिलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमें इसके बीच का लिखना था, 71 और 81 के बीच में 82 आता है, सो आई हैव रिटन दैट। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट आई एम राइटिंग 0.808800888800. This is also a irrational number. क्यों? Because it is non-terminating and non-recurring. अब हमारे पास एक और नंबर लिखना है। हमें 3 एग्जांपल्स पूछे गए थे, बट आप जितनी मर्जी लिख सकती हो क्योंकि इसमें आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो मैं इसमें क्या लिख रही हूँ 75। अब देखो 80 था वो भी 81 से छोटा था बट 71 से बड़ा, तो इन बिटवीन लिखने थे, इन दोनों को छोड़ के इसके बीच वाले टर्म्स लिखने हैं। तो 7501 0011 00011 and so on. So these are the 3 examples of irrational numbers that are lying between 5/7 and 9/11. Now we are having the last question of this exercise. इसमें हमें कैटेगराइज करना है दैट वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है √23। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास आ जाती है 4.79 अप टू सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है, जैसे आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जब आप इसको उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.79 और ये आगे आगे आंसर चलता रहेगा। तो आपके पास कौन सा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ना तो ये आंसर खत्म हो रहा है और ना ही कोई इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें ना कोई पैटर्न रिपीट हो ना कोई आंसर स्टॉप हो। सो इस तरीके से हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं वी गेट इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट हमारे पास √23 इज irrational number. Now what do we have √225? Now you know √225 is square of 15, so it can also be written as √15 multiplied by 15. आपको पता है जो पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, इट विल बिकम 15 ओनली। तो आपके पास 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। तो √225 इज अ रैशनल नंबर। नाउ in third part what you are having 0.376. in this decimal expansion has been given to you and this decimal expansion is of which kind? This is terminating. टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन से होते हैं जो कि आंसर एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाते हैं। और आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो आपको कौन से नंबर देती हैं दे गिव यू रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा रैशनल नंबर। Now in the fourth part what you are having 7.478478। तो आपके पास इस तरीके से 7.478478
4 7 8 वाला पार्ट जो वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इस पार्ट के ऊपर क्या है, आपके पास बार है। और आपको पता है आपके पास जो ये बार वाले पार्ट होते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ आंसर, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और कौन सा टाइप है, रेकरिंग। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग से आपको किस तरीके के नंबर मिलते हैं, रैशनल नंबर्स, क्योंकि आपने याद है 0.6 बार वाले नंबर्स को जो रेकरिंग टाइप वाले होते हैं उसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होते हैं दे गिव्स अस रैशनल नंबर। बट ये वाला देखो, आपके पास एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आंसर स्टॉप नहीं हो रहा है और कोई भी पैटर्न इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज इट इज नॉन recurring, you can say non recurring as well as you can say non repeating as well। तो इसमें हमारे पास जो आंसर मिलेगा it will be a irrational number। So by this your exercise 1.3 has been completed। You have to like this video, it gives me the motivation, subscribe this channel and give me some suggestions in the comments as well। Thank you।